السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سندھ کے تاریخی شہر سکھر، جہاں ایک شاندار تعمیر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ ہے معصوم شاہ کا مینار، ایک ایسا مینار جو نہ صرف سکھر کی پہچان ہے بلکہ اس کی تاریخ اور ثقافت کا ایک اہم حصہ بھی۔ سکھر کے مینارہ روڈ پر واقع یہ مینار سرخ اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہے اور یہ سکھر میونسپل کارپوریشن کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ اسے فخر سے اپنے شہر کی علامت کہتے ہیں۔ معصوم شاہ جی قبر بھی اتنے ہی ہے نا؟ اچھا، یہ مینار 1594 عیسوی میں مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں تعمیر ہونا شروع ہوا تھا۔ اس کے معمار تھے میر معصوم شاہ بکھری، جو اس وقت بکھر کے گورنر اور ایک معتبر شخصیت تھے۔ ان کی یہ شاندار کاوش آج بھی اپنے مقام پر شان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ مینار نہ صرف تاریخ کا ایک زندہ ثبوت ہے بلکہ سکھر کے عوام کے لیے باعث فخر بھی۔ یہاں آنے والے مہمانوں کے لیے یہ جگہ ایک لازمی سیرگاہ ہے جو شہر کی عظمت اور خوبصورتی کو بیان کرتی ہے۔ معصوم شاہ کے مینار کی تعمیر کی بنیاد تاریخ کے ایک اہم دور میں رکھی گئی۔ سال 1594 عیسوی تھا جب مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دربار میں ایک خاص شخصیت میر معصوم شاہ بکھری نے یہ شاندار مینار تعمیر کرانے کا آغاز کیا۔ اس مینار کی تعمیر میں سرخ اینٹوں اور چونے کے پتھر کا استعمال کیا گیا، جو اس وقت کے تعمیراتی فن کی عکاسی کرتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس مینار کے لیے سرخ پتھر بھارتی ریاست راجستھان سے منگوایا گیا، جو سخت موسمی حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مینار گرمیوں میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ مینار کی تعمیر کا آغاز تو میر معصوم شاہ بکھری نے کیا، لیکن اسے مکمل ہونے میں 14 سال کا وقت لگا۔ ان کے صاحبزادے میر بزرگ نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ یہ مینار نہ صرف تعمیراتی مہارت کا شاہکار ہے بلکہ میر معصوم شاہ کے عزم و حوصلے کی علامت بھی۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ مینار ایک پہاڑی ٹیلے پر بنایا جائے تاکہ اسے سکھر کے ہر کونے سے دیکھا جا سکے اور اس کی چوٹی سے پورے شہر کا نظارہ ممکن ہو۔ یہی وہ جذبہ تھا جس نے میر معصوم شاہ کو اس مینار کی تعمیر کے لیے متحرک کیا، اور آج یہ مینار نہ صرف سکھر بلکہ پورے سندھ کی تاریخ کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ معصوم شاہ کے مینار کی بنیادوں میں تاریخ کی خوشبو رچی بسی ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عزم اور حوصلے سے تعمیر کی گئی چیزیں وقت کے ساتھ مٹتی نہیں بلکہ اور نکھر جاتی ہیں۔ معصوم شاہ کا مینار اپنی تعمیراتی خصوصیات کی وجہ سے منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی تعمیر میں ایک خاص ہندسہ بار بار نمایاں کیا گیا ہے، اور وہ ہے چوراسی۔ یہ وہ مینارہ ہے جو میر محمد معصوم شاہ نے تعمیر کروایا تھا۔ اس مینارے کی ایک خاص بات ہے کہ 84 عدد اس میں بہت خاص ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی 84 فٹ ہے، اور اس کی جو اونچائی ہے، اونچائی بھی 84 فٹ ہے، اور اس کے جو سیڑھیوں کی تعداد ہے وہ بھی 84 ہے۔ آئیں ابھی ہم اوپر چلتے ہیں۔ مینار کے اندرونی حصے میں ہر منزل پر دریچے بنائے گئے ہیں جہاں سیڑھیاں چڑھنے والے افراد آرام کے لیے رک سکتے ہیں۔ یہ دریچے نہ صرف ہوا کی روانی کو برقرار رکھتے ہیں بلکہ فن تعمیر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ بہت تنگ راستہ ہے۔ مینار میں استعمال کی گئی اینٹیں اور چونے کا پتھر آج بھی اپنی مضبوطی اور پائیداری کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ وہی مواد ہے جو موسم کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے خاص طور پر منتخب کیا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد بھی یہ مینار اپنی اصلی حالت میں قائم ہے۔ میرے
हालत देख, जैसे खड्डे में खड़ा हूँ जैसे। अगर ये रोशनदान ना होते तो आदमी घुटन से मर जाता। ये देख, अल्लाह, गिर गया तो ऐसे लुढ़कता हुआ जाऊंगा मैं यहाँ से। ऐसे बनी हुई सीढ़ियाँ, ऐसे नहीं बनी हुई, इस तरह ऐसे। मीनार की चोटी पर एक छोटा गुंबद तामीर किया गया है जो निहायत खूबसूरती से उसकी शान को बढ़ाता है। यह गुंबद न सिर्फ मीनार की आराइश का हिस्सा है बल्कि इसकी अलामती अहमियत को भी ज़ाहिर करता है। यह मीनार इस बात की जिंदा मिसाल है कि माजी में तामीराती फ़न किस कदर तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म था। 84 के अदद का बार बार इस्तेमाल एक मुनफरिद अलामत है जो शायद उस दौर के किसी राज या तामीराती फ़लसफ़े की अक्कासी करता है। मासूम शाह के मीनार की चोटी पर पहुंचना एक नाकाबिल फरामोश तजुर्बा है। ऊपर आए तो पानी साथ लेकर आए, इतनी प्यास लग जाती है सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, गला खुश्क हो गया। इस तारीखी मीनार की चोटी से पूरा सक्खर शहर आपकी नज़रों के सामने होता है। दरिया सिंध की लहरें, सक्खर बैराज का मुनफरिद मंजर और लैंसडाउन बुर्ज की शान व शौकत, सब कुछ एक ही जगह से देखा जा सकता है। ये नज़ारा न सिर्फ दिलकश है बल्कि इस बात की याद दिलाता है कि मीर मासूम शाह ने इस मीनार को एक ऐसी जगह पर तामीर करने का ख्वाब देखा था जहां से पूरे शहर को देखा जा सके। ये मीनार वाकई उनके ख्वाबों की ताबीर है। ताहम इस मीनार की तारीख में एक अहम मोड़ अंग्रेज़ दौर में आया। उस वक्त मीनार की चोटी पर किसी भी किस्म की रुकावट मौजूद नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अफराद ने यहाँ से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इन वाक़यात के बाद अंग्रेज़ सरकार ने मीनार की हिफाजत के लिए इसके ऊपरी हिस्से में लोहे की सलाखें नस्ब करवाईं। आज ये सलाखें न सिर्फ मीनार को महफूज बनाती हैं बल्कि सयाहों के लिए मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ का सबब भी हैं। मीनार के अंदर चढ़ाई का सफ़र भी किसी एडवेंचर से कम नहीं। 84 सीढ़ियाँ तय करते हुए आप उस दौर की तामीराती महारत को महसूस करते हैं और हर मंजिल पर मौजूद दरीचे आपको सांस लेने और सुस्ता लेने का मौका फराहम करते हैं। ये मीनार न सिर्फ तामीराती शाहकार है बल्कि ये तारीख के हर मोड़ पर अपने वक्त के फैसलों का गवाह भी रहा है। अंग्रेज़ दौर की तब्दीलियाँ आज भी इस मीनार की कहानी का हिस्सा हैं। मासूम शाह मीनार के चबूतरे पर एक और तारीखी शाहकार हमारी तवज्जो का मरकज़ है जिसे आरामगाह कहा जाता है। ये इमारत फ़ारसी तर्ज़ तामीर का एक शानदार नमूना है और अपने वक्त की तख्लीकी महारत को बयान करती है। आरामगाह एक 8 कोनों वाली खूबसूरत इमारत है जिसके ऊपर एक बड़ा गुंबद तामीर किया गया है। इसकी बालकोनियाँ और नीले रंग की टाइलों का इस्तेमाल इमारत को एक मुनफरिद शान अता करते हैं। ये टाइल्स फ़ारसी तर्ज़ तामीर की याद दिलाती हैं और आज भी अपनी खूबसूरती बरकरार रखे हुए हैं। इस इमारत को आरामगाह इसलिए कहा जाता है कि यहाँ आने वाले ज़ायरीन कुछ देर के लिए सुस्ता सकें और तारीख़ी मीनार के साथ अपने ताल्लुक़ को महसूस करें। इसी चबूतरे पर मीर मासूम शाह बखरी और उनके ख़ानदान के अफराद की कब्रें भी मौजूद हैं। ये कब्रें एक साइबान के नीचे हैं जो निहायत खूबसूरती से तामीर किया गया है। साइबान की छत, सुतून और कब्रों के अतराफ फ़ारसी कलमात और कुशीदाकारी से मुज़य्यन है जो न सिर्फ उनकी अज़मत को ज़ाहिर करते हैं बल्कि उस वक्त की सकाफ़त और फ़नून लतीफ़ा की महारत को भी नुमायाँ करते हैं। यही वो जगह है जहाँ मीर मासूम शाह बखरी और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद अबदी नींद सो रहे हैं। उनकी ये आरामगाह न सिर्फ एक तारीख़ी मकाम है बल्कि ये उनके शानदार विरसे का मज़हर भी है। मीनार के अहाते में मौजूद ये कब्रें और आरामगाह मीर मासूम शाह के तामीराती शौक़ और उनके ख़ानदान की यादगार हैं। ये जगह आज भी लोगों को उनकी अज़मत की कहानी सुनाती है। ये कब्र पर लिखाई की हुई है ये सारा, और इस पत्थर से मालूम पड़ता है कि उसी दौर का है और बड़ी कारीगरी से इसके ऊपर लिखा गया। ये तो कुरानी आयत लिखी गई है, वल अर्द वला यऊदुहु, ये देखें, वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहा व हुवल अलियुल अज़ीम।
आयतुल कुर्सी लिखी हुई है यहाँ पर, और ये फ़ारसी में भी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन नाम नहीं मिल रहा कि ये कब्र किस किस की है। और इस गुंबद के नीचे जो ये मकबरा है, यही मकबरा मतलब मालूम होता है कि पुराना मकबरा है। यही मकबरा, हर पिलर पर मतलब ये देखें कारीगरी की हुई है, ये नक्श निगार बने हुए हैं, और आयात और फ़ारसी में अशार, कुछ नज़में लिखी हुई हैं। तो जब मैंने इस कब्र को यहाँ पर देखा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये बड़ी अच्छी इबारत मुझे अरबी में लिखी हुई दिखी, तो मैं आपको इस पढ़कर इसका मतलब बतलाता हूँ। अच्छा, ये लिखा हुआ है, मन ज़ारा क़ब्रन, जिसने कब्र की ज़ियारत की, फ़क़ाल, और कहा, फिर उसने ये कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद, ए अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल के हक़ के साथ, अल्लाह तुअज़्ज़िब हाज़ल मय्यत, कि आप इस मय्यत को अज़ाब ना दें, रुफ़िअल अज़ाबु अन्हु इला यौमिल क़ियामह, तो क़यामत के दिन तक उससे अज़ाब हटा दिया जाता है। और दूसरी इबारत यहाँ लिखी हुई है, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। ये पढ़ें तो कहते हैं, मन क़रा अला क़ब्रिन, जिसने किसी कब्र पर ये पढ़ा, रुफ़िअल अज़ाबु अन्हु, उससे अज़ाब हटा दिया जाता है, 40 सना, 40 सालों तक। ये मेरे ख्याल से लिखा भी उस दौर का ही हुआ है, आज का ना ये पत्थर लग रहा है और ना ये लिखाई लग रही है, तो उस दौर की ये इबारत है। वल्लाह आलम इस रिवायत की या इस हदीस की कहाँ तक सेहत है, ज़ईफ़ है या सही है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये इबारत लिखी हुई थी, मैंने आपको पढ़कर सुना दी। अगर आपने अभी तक मासूम शाह मीनार की सैर नहीं की तो अपने अगले सफ़र में सक्खर आएँ और इस तारीख़ी मकाम को देखने का मौका हरगिज़ न गंवाएं। तारीख़ और सक़ाफ़त को महसूस करने का ये एक नायाब तजुर्बा होगा।